آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے دوبارہ امتحانات آج ہونے جا رہے ہیں۔ 41,000 سے زائد طلبہ و طالبات حصہ لے رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں قائم امتحانی سینٹر میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ 153 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ 17 خواتین کانسٹیبلز بھی شامل ہیں۔ کوئی دباؤ چلا نہ دھمکی، عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا وقت آ گیا۔ سندھ بھر میں ایم ڈی کیٹ کے امتحانات اتوار کو ہوں گے۔ ایم ڈی کیٹ امتحانات میں صوبے بھر سے 41,000 سے زائد طلبہ و طالبات حصہ لیں گے۔ کراچی کے امتحانی مرکز ایکسپو سینٹر میں 15,000 طلبہ امتحان دیں گے۔ ایم ڈی کیٹ کا انعقاد کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر واقع ایکسپو سینٹر کراچی، جامشورہ میں لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز، شہید بے نظیر آباد میں بلاول اسپورٹس کمپلیکس، نواب شاہ لاڑکانہ میں پولیس ٹریننگ سکول، پی ٹی ایس بس ٹرمینل لاڑکانہ میں بیک وقت کیا گیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ انٹری پوائنٹ رکھے گئے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں عارضی امتحانی مرکز پولیس کے 153 اہلکار تعینات ہوں گے۔ پولیس کی نفری میں 7 ایس ایچ اوز، 9 پولیس موبائلیں، 10 پولیس موٹر سائیکل پر اہلکار تعینات ہوں گے۔ 17 خواتین کانسٹیبل بھی تعینات ہوں گی۔ طلباء کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ طلباء کے تمام انٹری جو ہوگی وہ گیٹ نمبر 1 سے سوئی صدرن گیس کمپنی کے سامنے والا جو گیٹ ہے اس سے انٹری ہوگی۔ اس ضمن میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ سیکیورٹی کے تمام ادارے بشمول رینجرز، ٹاؤ یونیورسٹی کی اپنی سیکیورٹی کے تمام عملہ اس وقت موجود ہوگا کل کے امتحان کی انعقاد کے لیے۔ ٹریفک پولیس کے 50 کے قریب اہلکار ٹریفک کنٹرول کریں گے۔ امتحانات دینے کے لیے آنے والوں کے لیے سیوک سینٹر کے قریب پارکنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سوئی سوردن کے سامنے والے گیٹ سے امیدواروں کی انٹری ہوگی۔ لڑکے لڑکیوں کے لیے علیحدہ انتظامات، طبی عملہ اور ایمبولینس بھی امتحانی مرکز پر موجود ہوں گے۔ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ آج ہو رہے ہیں۔ عارضی امتحان دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایکسپو سینٹر میں عام افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ صرف طلبہ ایڈمٹ کارڈ دکھا کر امتحانی مرکز میں داخل ہو سکیں گے۔ پابندی سے نقل اور دیگر ممنوعہ ذرائع کے استعمال کو روکا جا سکے گا۔ امتحانی عملے کو بھی ایکسپو سینٹر میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ دفعہ 144 کے نفاذ کا مقصد پرامن ماحول میں ٹیسٹ کرانا ہے۔ پابندی سے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں بیرونی عمل دخل سے بچا جا سکے گا۔ خفیہ، تاریخی اور پراسرار عمارت، جس میں داخل ہوتے ہی آپ ایک صدی کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ یہ ہے عمارت وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی۔ شہر کراچی ایسی ہی شاندار تاریخی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ یہاں موجود تاریخی عمارتیں فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہیں، اپنے دامن میں گزرے وقت کی نشانیوں کو سمیٹے بیٹھی ہیں۔ ایسی ہی ایک عمارت کے بارے میں جانتے ہیں عائشہ فرین کی رپورٹ میں۔ یہ ہے شہر قائد کی وہ عمارت جو تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی ہے۔ ماضی میں اس عمارت کو یہودیوں کی خفیہ تنظیم فری میسن کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ عام لوگوں میں یہ عمارت جادو گھر کے نام سے مشہور تھی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عمارت میں آج بھی اس خفیہ تنظیم کی کون کون سی علامات موجود ہیں۔ تاریخی عمارتیں دلچسپی رکھنے والوں کو اپنے شہر میں کچھ اس طرح جکڑ لیتی ہیں کہ انسان خود کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ برطانوی طرز تعمیر پر مبنی یہ عمارت کراچی میں 1914 میں قائم کی گئی۔ یہ ہے اس کا داخلی راستہ، جہاں موجود یہ ستون یونانی طرز پر بنائی گئے ہیں۔ اس عمارت پر موجود یہ نشان بھی فری میسن تنظیم کا ہے۔ یہ بہترین آرکیٹیکٹ ہیں، آپ بلڈنگ میں دیکھیں، انہوں نے بڑا خوبصورت بلڈنگ ہے یہ، جس میں برما ٹیک وڈ کا استعمال کیا گیا ہے، اور باہر جو ہے گزری بلاکس لگائے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہ بلڈنگ ہے، اس میں آپ جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں، آپ کو رائٹ اور لیفٹ پہ ٹیب نظر آئیں گی، تختیاں، جو ایک ان کا کوئی پہلے ٹیمپل تھا وہ ڈیمولش ہو گیا تھا، تو وہ تختیاں لا کے یہاں لگائی گئی ہیں۔ یہ عمارت یہودیوں کی خفیہ تنظیم فری مینسن کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس تنظیم کی ابتدا 1717 میں برطانیہ سے ہوئی اور 1973 میں اس عمارت کو پراسرار اور غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث بند کر دیا گیا۔ پاکستان میں اس تنظیم کے مذموم مقاصد آشکار ہونے کے بعد 1983 میں اس پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ یہاں آج بھی تنظیم کے مختلف ارکان کے نام کی تختیاں موجود ہیں۔ تو جب یہ آرگنائزیشن بینڈ ہوئی ہے لیٹ 70s میں،
तो उसके बाद 80s में यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे वाइल्ड लाइफ का ऑफिस था, ग्राउंड फ्लोर पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को अलॉट कर दी गई। फिर अर्ली 80s में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में यहाँ से मूव हो गया, तो उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को मिल गई। उसके बाद हमारे यहाँ दफातर हैं और 2008 में इस बिल्डिंग को कौमी विरसा करार दिया गया। ये वो हॉल है जहां फ्री मैसन तंजीम के मेंबर्स की तकरीबात हुआ करती थी और यहाँ पीछे एक स्टेज भी मौजूद था जिसे अब तोड़ दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो फ्लोर है वो शतरंज के तर्ज का बना हुआ है और इनके बारे में एक मिथ मशहूर थी कि इनके नज़दीक बुराई और अच्छाई में कोई फ़र्क नहीं है, जो शतरंज का ये फ्लोर ज़ाहिर करता है। इस हॉल में अब किताबों का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, जबकि इसी तर्ज का एक हॉल निचली मंजिल पर भी मौजूद है जहां हुनूद शुदा नायाब जानवरों को रखा गया है। इमारत की पहली मंजिल पर कायम यह राहदारी नीचे जाने के मुख्तसर तरीन रास्ते के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। पहली मंजिल पर बने हॉल के 2 दरवाजे यहाँ, जबकि 2 पिछली राहदारी में खुलते हैं और छत पर बने ये प्रणाले बारिश के पानी की नकासी के लिए बनाए गए हैं, जबकि ये दीवारें गिजरी ब्लॉक्स की बनी हुई। यहूदियों की खुफिया तंजीम के बहुत से राजों को अपने अंदर समोए ये इमारत जाहु जलाल के साथ खड़ी तेजी से गुजरते वक्त को अपने अंदर जज्ब कर रही है। मुनफरिद तर्ज तामीर का यह अजीम शाहकार अब सिंध वाइल्ड लाइफ की मिल्कियत है, जहां हुनूद शुदा जानवरों और आबी हयात का एक बहुत बड़ा म्यूजियम मौजूद है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। बिजली के बिलों से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर है। सोलर पैनल और इन्वर्टर्स की कीमतों में कमी हो गई है। इंपोर्टर मोहम्मद अवैस ने कहा है कि डॉलर की कीमत में कमी के बाद सोलर पैनल और सोलर में इस्तेमाल होने वाले दीगर सामान की कीमतों में कमी हो गई है। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, महंगी बिजली से छुटकारा। सोलर पैनल की कीमतों में कमी वाक़ होगा। 165 वाट ह्यूमो 5 सोलर पैनल जिसकी कीमत 45,000 रुपए थी, वो 30,000 रुपए में फरोख्त होने लगा है। सोलर पैनल्स इंपोर्टर मोहम्मद उवैस का कहना है हर एक दूसरे दुकानदार ने सोलर पैनल इंपोर्ट कर लिए और दूसरा डॉलर की कीमत नीचे आ गई, इससे भी कीमतों में कमी आई है। देखिए अभी बीच में हुआ ये था कि हर लोगों को एक शौक चल रहा था कि अपना सोलर पैनल मंगवाए ना, तो हर आदमी ने इस बार जो है ना इंपोर्ट किया ना, उससे नुकसान ये हुआ कि हमारे बाज़ार में बड़ा इफेक्ट पड़ा और डॉलर की वजह से बाज़ार अचानक से पे नीचे आ गया, हमारा एकदम ऊपर हो गया पे नीचे आ गया। जबकि रीगल मार्केट में आने वाले खरीदारों का कहना है पहले के मुकाबले में सोलर पैनल की कीमतों में कमी है। असल में पहले से तो बहुत ज़्यादा ही कम लग रहा है और जो है सीज़न भी ऑफ हो गया है। जैसे कि बेसिकली पहले जैसे सीज़न था तो एक चीज़ थी, यानी कि ये जो प्लेट है सोलर प्लेट 45-46 की थी, अब यानी कि 28-29 थी, यानी कि 32 की हो गई है। पहले से कमी हुई है सीजन में सोलर प्लेटों में, पहले थोड़ी ज़्यादा थी तो अब कम में हो गई कीमत। इंपोर्टर्स ने कहा चाइना में सोलर पैनल की कीमतों में मजीद कमी हो गई है। नया माल आते ही सोलर पैनल्स में मजीद कमी हो सकती है। कैमरामैन हैदर के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची बार के इंतखाबात में कुछ ही वक्त रह गया है। उम्मीदवारों ने जीत के लिए मैदान सजा लिया। मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट। कराची बार के सालाना इंतखाबात करीब आ गए, उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरज़म। कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त की उम्मीदवार साबिक जज एडवोकेट नसरुल्लाह कोराई कहते हैं कि वकला ने मौका दिया तो उम्मीदों से भी ज़्यादा काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं कि वो तमाम मसाइल जो कराची बार के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उन तमाम मसाइल का कहीं ना कहीं से कोई हल निकाल के और तमाम वकला को इंशाअल्लाह ताला उनके उम्मीदों पे ऊपर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। दीगर वकला का कहना था कि उम्मीद है कि उम्मीदवार कामयाब होकर वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। हम तो इंशाल्लाह बहुत पुर उम्मीद है कि कोई वजह ऐसी नज़र नहीं आ रही कि नसरुल्लाह कुरैशी साहब जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन में इलेक्ट ना हो सके और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल 16 दिसंबर को इनकी मेहनत रंग लाएगी और ये जनरल सेक्रेटरी कराची बार इलेक्ट होंगे। और मेरी नज़र में नसरुल्लाह कुरैशी साहब क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं, एक मेहनत कश वकील हैं, तो वो इन प्रॉब्लम्स को बेहतर समझेंगे और उनको उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। कराची बार के सालाना इंतखाबात 16 दिसंबर को होंगे, जहां कमोबेश 5000 से जायद वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। तलब और रसद में बेहतरी आने से डॉलर की उड़ान में कमी आ गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता जबकि ओपन मार्केट में 25 पैसे महंगा हो गया।
IMF स्टाफ लेवल मुआहदे पर डॉलर की उड़ान थम गई। हुकूमती इकदाम के सबब एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 3 पैसे से कम होकर 286 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 288 रुपए 14 पैसे की सतह तक ट्रेड हुआ। माहिरीन के मुताबिक IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF के बाद दीगर ममालिक से भी पाकिस्तान के लिए फंड्स आएंगे और रुपए की कदर में बेहतरी होगी। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए से बढ़कर 288 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 4 रुपए महंगा होकर 311 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपए बढ़कर 357 रुपए पर जा पहुंचा। एक हफ्ते में इमारती धर्म 1 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 79 रुपए का हो गया, जबकि सऊदी रियाल 20 पैसे कमी से 76 रुपए 50 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कारोबारी हफ्ता मस्बत रहा। 100 इंडेक्स में 1671 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। MD स्टॉक एक्सचेंज ने तेजी की वजह IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात को करार दिया। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय होने पर सरमायाकार सरगर्म रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1671 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 3% इजाफे से 57,063 पर बंद हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 57,750 और कम तरीन सतह 55,644 रही। 118 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 80 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए और मार्केट कैपिटलाइजेशन 388 अरब रुपए बढ़कर 8,281 अरब रुपए हो गई। MD स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान ने मार्केट में तेजी की वजह IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात और आइंदा दिनों में शरह सूद में मुमकिन कमी को करार दे दिया। कहा कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल है और मार्केट नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। इन्वेस्टर्स का, एनालिस्ट का ये व्यू डेवलप हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद अब पीक ऑफ कर रहे हैं और हमने देखा है लास्ट फ्यू कट ऑफ्स में भी स्टेट बैंक के जो है वो कट ऑफ्स लोअर लेवल के ऊपर हुए हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट्स एंटिसिपेट करती हैं इंटरेस्ट रेट्स अगर लोगों का ख्याल नीचे आएंगे तो मार्केट को के लिए एक अच्छा है शगुन, और हमारी जो है वो वैल्यूएशंस भी बहुत लो लेवल पर थी। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। महंगाई की शरह कम होने पर सरमायाकार शरह सूद में कमी की तवक्का कर रहे हैं। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार। कराची में चैलेंजिंग लिनियरिटी के मौजू पर तीसरी सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जामियात से प्रोफेसर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया को दरपेश मुआशी और माली मसाइल का हल पेश किया। सबा परवेज के जनूबी एशिया को है किन माशी मसाइल का सामना, जदीद दौर में कैसे हो इसका मुकाबला। IBA में दुनिया भर से आए हुए माहिरीन ने हिकमत अमली पेश कर दी। IBA में चैलेंजिंग लाइनैरिटी के उन्वान से 3 रोजा तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। प्रोफेसर IBA मरकजी कैंपस डॉक्टर अदनान ने माशियात और मालियात से मुतालिक बताया कि वक्त आ गया है कि इस फील्ड को बेहतर करने के लिए जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए। And similarly in our academia, in the past, in our quantitative courses, we offer courses in the field of econometrics. We offer econometrics 1, econometrics 2, time series econometrics, Bayesian econometrics, various alternative subjects. But this is the right time to teach our students the machine learning stuff, and let's propose these data analytics new courses so that they can learn how to tackle the big data. प्रोफेसर डॉक्टर करामत अली ने शुरका को नौ आबादियात के बारे में बताया कि किस तरह दुनिया में ये इस्तिलाह काम करती है। These countries brought to the fore their indigenous cultures, their music and arts, and regained for the commoners the lands grabbed through colonial approbation, reformed education and academia, and removed colonial biases from the syllabi. Today, black is not a derogatory word. Today, it symbolizes enrichment of culture and self-confidence of a people. कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन हैदर अली के साथ सबा परवेज, सिटी 21। CVU पर निशान पाकिस्तान से दो दरिया तक NGO की जानिब से ख़वातीन की बाइक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद ख़वातीन ने शिरकत की। बाइक राइडर्स ने कहा कि मोटरसाइकिल के बाइस वक्त की बचत हो जाती है,
मोहम्मद हम्माद तफसीलात बताएंगे। खवातीन में बाइक राइडिंग का शऊर उजागर करने के लिए बड़ा इकदाम। कराची में NGO की जानिब से खवातीन की बाइक रैली निकाली गई। खवातीन बाइक राइडर्स का कहना था कि मोटरसाइकिल के जरिए घर से दफ्तर और दीगर जगहों पर जाने से वक्त की बचत होती है। बाइक चलाने से ये आसानी हो गई है, हमें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब हम सब काम कर सकते हैं तो ऑब्जेक्शन बाइक चलाने पे क्यों है? परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो जहन बीमार है ना, उनको तो हम बाइक चलाते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे बराबर से जा रहे होते हैं, कमेंट करके जा रहे होते हैं, सिर्फ हमारे पास इग्नोरेंस के अलावा कोई और आंसर ही नहीं होता। रैली के शुरका ने शिकवा किया कि बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल चलाने के दौरान तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। कुछ लोग हौसला अफजाई भी करते हैं। मामा से बाइक चलाना सीखी थी, तो क्या कहते हैं उसको, सीखने में थोड़ी मुश्किल आती थी, क्योंकि मतलब पहले मेरा कद मतलब वो नहीं था, पाँव वगैरह में मुश्किलात होती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कवर कर लिया। पहले तो ये द फ्रीडम जो इवेंट करवा रहा है बहुत बेहतरीन है। इसमें ये कि ख़वातीन जैसे सिखा रही हैं, मैं सिखाती हूँ, तो इससे ही इंकरेजमेंट मिल रहा है लड़कियों को, औरतों को। खवातीन बाइक रैली सी व्यू पर निशाने पाकिस्तान से होती हुई दो दरिया पहुंचकर वापस निशाने पाकिस्तान पर इख्तिताम पसीर हुई। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।